Good evening and welcome to this brand new show on the road called the Election Radar. For 1 month from here on, we are going to be on the road, and in the Election Radar will be one constituency or a group of constituencies. Today we are in Noida, but we are going to focus not just on Noida but Dadri as well as Jewar, all the three districts in Gautam Budh Nagar. These three constituencies hold the key to the urban seats of Western UP. It's a huge center. But as the name of the show suggests, there is a tale of two Noidas, two very distinct identities that this area has. One is an urban identity and the other, the very typical realpolitik, a rural identity, political identity of this area. How are the voters looking at this, and how are the candidates looking at the contest this time around in Noida? Let me introduce our guests. We have Pankhuri Pathak. She's the Congress candidate from Noida. Thank you very much, Pankhuri, for joining us. I also have Mr. Kriparam Sharma, the BSP candidate from Noida. Thank you very much, Sharma ji, for joining us. Asim Zaidi is the president of the Noida Samajwadi Party Youth Wing. Thank you very much, Asim, for joining us. And we have Mr. Abhishek Kumar, who is the president of the Noida Extension Flat Owners Welfare Association, also known as NEFOA. Thank you very much. The reason why Abhishek is here is because the issue that Noida and Greater Noida faces is very peculiar, and a lot has to do with some unclaimed promises to the flat owners. So let me first begin with you, Pankhuri Pathak. This main issue, and we'll get ground reports also in just a short moment. What, according to you, ails this region? Noida, Greater Noida, Jewar, Dadri. What is the one basic problem according to you? Well, I would say there is no one basic problem. There are multiple problems. There are different segments of the society which are facing different problems. You talked about the flat buyers. 5 years back, they were promised that all their issues would be resolved. That was the promise that the BJP made. But today, thousands of flat buyers have not got the possession of their flats. Those who have got the possession are struggling for registries. There are various builder-buyer issues that are yet to be resolved. Then there are the people who are living in the villages. They don't have the title to their own property. They have been agitating for months at an end. They say that at least give us the title to our property so that we can utilize our property in a proper way. And then there's this entire, huge segment of our unauthorized colonies. There are areas where the Noida authority has registered the plots of land. No, but then, Pankhuri, do you feel that these issues matter in the elections? Because, there is a common notion that while you may have these certain local issues, but in elections, perhaps issues are very different. So is that a calculation that you also have? In my city, that at the end in of the day, Noida, it will become everything about Modi and Yogi. No, it's absolutely not that way around. This time around, there is no wave of any party. People are concentrating on their local issues. I have been in this constituency for a very long time. I have been campaigning. I have been part of various movements, and I can tell you that people want a change. They want their issues to be resolved. And everywhere, people have told me that we don't care which party comes to power or goes out of power. What we want is that we want some candidate who is raising our issues, who will raise our voice, and who will get our issues resolved. So this is a very local election this time. Okay. Dhiren Singh is the MLA of the BJP from Jewar, is also with us. Mr. Singh, thank you very much for joining us. मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपकी जो क्षेत्र है वहाँ पर एक एयरपोर्ट बन रहा है जी। उस एयरपोर्ट के सपने से यहाँ के, उस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विकास की एक छवि है उस एयरपोर्ट की कि इस क्षेत्र में एक विकास आएगा। लेकिन बीजेपी पर, आपकी पार्टी पर आरोप यह रहता है कि विकास की बात ज़रूर होती है, लेकिन ज़मीन पर आते आते वो हिंदू मुसलमान ही हो जाता है। आपको लगता है कि ये चीज़ नोएडा, जेवर और दादरी में लागू नहीं होती? नहीं, देखिए, मैं आपको अपनी विधानसभा के बारे में बता सकता हूं, क्योंकि मैं कोई पार्टी का अधिकृत वक्ता तो हूं नहीं। धीरेन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। मेरी सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपका जवाब। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
बिल्कुल बिल्कुल, हेलो। बोलिए धीरेन जी। मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं अपना जेवर के बारे में बता सकता हूँ। ये जेवर विधानसभा उत्तर प्रदेश की एक बहुत पिछड़ी हुई विधानसभाओं में शुमार थी सन 2017 से पहले। और यह वही क्षेत्र है जहां 2 इंच जमीन के लिए गोलियां चलती थी। यहाँ का विकास अवरुद्ध था। इंडस्ट्री यहाँ से पलायन कर रही थी। गुंडागर्दी का आलम बहुत था इस जिले में। तो 2017 के बाद यह एक प्रयास किया गया कि अगर औद्योगिक विकास नहीं होगा तो इस क्षेत्र में नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन कैसे होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया और 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री आए, इसकी आधारशिला रखी गई और इसका काम आगे जारी है। जहां तक आपने ये कहा कि धर्म के नाम पर वोट, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेवर विधानसभा का अधिसंख्यक मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि पार्टी ने किसी भी आधार पर कोई भेद नहीं किया किसी के साथ में। अगर किसान सम्मान निधि मिली है तो सभी को उसके योग्यता के अनुसार मिली है, पात्रता के अनुसार नहीं, मिली पर ये आपका तजुर्बा जेवर का जरूर हो सकता है, लेकिन ये और राज्य के और जो क्षेत्र हैं वहां पर इस तरीके की एक स्थिति नहीं है। 80 बनाम 20 की भी बात होती है इसी राज्य में। मैं कृपा राम शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं। नोएडा से आप प्रत्याशी हैं बसपा के। आपको इतनी उम्मीद क्यों है इस बार? बसपा के बारे में सबसे ज्यादा कम बात हुई है। कुछ चैनल्स में तो ओपिनियन पोल में आपने देखा भी है कि क्या दिखाया गया है प्रदर्शन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार बीएसपी जो है वो 2007 का दोहरा पाएगी? जी संकेत जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। देखिए 2007 में भी आपने अभी बताया कि बसपा को चौथे नंबर की पार्टी बताया जा रहा है। जब रिजल्ट आया तो पहले नंबर की पार्टी बनी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब किसी क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तो इस भरोसे और विश्वास के साथ चुनती है कि हमारा विधायक ज़रूरत में, मुसीबत में, दुख में, दर्द में हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन नोएडा की क्षेत्र की जनता इतनी अभागी रही, इस भरोसे और विश्वास को हमारे विधायक जी ने गहरी चोट पहुंचाई है। पंकज सिंह जी ने, राजनाथ सिंह सन। जी 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 पंकज सिंह जी जो विधायक हैं हमारे यहाँ, उन्होंने इस भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई है। और मैं बहन जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देकर भेजा है क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए। मुझे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। नोएडा के लोग क्यों कॉन्फिडेंट है कि आपको समर्थन मिलेगा? इसलिए क्या देखिए, अक्सर ये होता है केमिस्ट्री के साथ साथ गणित भी बैठनी चाहिए। जी, तो आपकी गणित बैठ रही है कि नहीं? हाँ, मेरी गणित बैठ रही है कि पहले तो मैं जातिवाद की बात तो करता नहीं, चूंकि मैंने 32 साल राजनीति किया, लेकिन चुनाव में जातिवाद भी एक फैक्टर है। और इसलिए हमारे दादरी क्षेत्र में आज तक कोई भी राष्ट्रीय दल गैर गुजर को टिकट नहीं देता। चुनाव में जाति की बात करें तो बसपा का यहाँ कमिटेड वोट, जाटव समाज का वोट 70,000 है, वाल्मीकि समाज का वोट 40,000 है, 1,10,000 दलित वोट है, 2.25 लाख ब्राह्मण है, मुस्लिम भाइयों का आशीर्वाद मिल रहा है। और सर्व समाज में मैंने 32 साल काम किया, मुझे ठाकुरों का भी समर्थन मिल रहा है, मुझे गुजर भाइयों का भी समर्थन मिल रहा है, यादवों का भी समर्थन। ये सब आपके हिसाब से मुद्दे रहेंगे नोएडा के लिए? अलग अलग जाति और धर्म और समुदाय के लोग भी वोट दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ नोएडा के लोग इसलिए वोट करेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी के समय में नोएडा में विकास की गंगा बही थी। नोएडा में 4 एलिवेटेड रोड दिए, जाम से मुक्ति दिलाई बहन जी ने। तो एयरपोर्ट बना रहे हैं बीजेपी वाले। एयरपोर्ट अभी धीरेन जी ने बोला एयरपोर्ट। जी एयरपोर्ट की जहाँ तक बात है, बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार प्रपोजल भेजा था, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकारों ने अपनी राजनीतिक मीमांसा के कारण उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज की जहां तक हम बात करें, बहन जी ने नोएडा को स्वर्ग बनाया, 4 एलिवेटेड दिए, 5 हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्कूल बनाए जिनकी कैपेसिटी 6-6 हजार। The problem is that this is a state where all those who have propagated vikas or development have not really come back to power. Look at Mayawati's experiment. Look at Akhilesh Yadav who said काम बोलता है. So there is no clear correlation between development and winning. मैं आप एक बहुत ज़रूरी मुद्दे के लिए, very very important issue for Noida and Greater Noida, and that is the pain point of the flat buyers. अभिषेक, क्या दिक्कत है? अगर आप संक्षेप में अगर आप ये बताना चाहें कि क्या परेशानी क्या है? देखिए, नोएडा की फ्लैट ओनर्स, मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूंगा। यहाँ की पहचान ऊंची इमारतों से ही है। और ऊंची इमारतों ने ही शहर को बसाया है। आप देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि इनकी मुद्दा विकास है ही नहीं, इनकी मुद्दा है सिर्फ एक, आप देखिए तो एक जातिवादी एक मुद्दे पर है।
देखिए अब जिस हाई राइज में देखिए लोग जो रह रहे हैं उनके घरों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। जहाँ रजिस्ट्री हो गई है वहाँ मूलभूत सुविधाएं की कमी है। आप ये समझ सकते हैं क्या पिलर पानी का रिसाव होता है, पिलर में जा रहा है, जंग लग रही है, कब वो बिल्डिंग। And this is a place, by the way, where in Shaberi village you had buildings collapsing because of the exact same thing. ये देखिए ये बिल्कुल आपका ये कहना है जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं अच्छे अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर्स की, उनके भी गिरने के चांसेस हैं। कभी भी वो गिर सकता है। हम लोगों ने तीनों गवर्नमेंट को हम लोगों ने देखा। ये मुद्दा क्यों नहीं बनता शर्मा जी? ये मुद्दा क्यों नहीं? अगर रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनकी बिल्डिंग गिर गई तो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। देखिए दुर्भाग्य ये है कि पिछली सरकार में, इस मौजूदा सरकार में इन मुद्दों को कोई उठाने वाला था ही नहीं। हमारे फ्लैट बायर्स हैं जिन्होंने जीवन भर की कमाई आशियाना की चाह में बिल्डर को दे दी, उनको मकान नहीं मिला, किराया दे रहे हैं, बैंक का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। हमारे विधायक ने एक बार भी ये मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष नहीं लेके गए। अदरवाइज ये होता तो आज सबके पास फ्लैट होते। मेरे भाई की पीड़ा, अभिषेक जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, इनकी पीड़ा बिल्कुल जायज़ है। यहाँ देखिए क्षेत्रीय विधायक की, क्षेत्रीय सांसद की ये जिम्मेदारी बैठती है, उसके क्षेत्र में यदि इनजस्टिस हो रहा। आपने अभी साबेरी का जिक्र किया, साबेरी में पहले भी 2 बिल्डिंग कोलैप्स हुई और ये सीधा सीधा कहते हैं ना भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, पैसे देकर आसिम खूब। जी, आपको नहीं लगता है कि अभी जैसे शर्मा जी ने जो बताया कि जो हुआ, इसके बाद भी राजनीति, यूपी पॉलिटिक्स इज सच कि उसकी सारी बातें जो हैं वो जाति, धर्म, कॉम्बिनेशन, इन सब चीज़ों पर होती है। इसमें जनता के मुद्दे कहाँ जाते हैं? सर मैं वही बताना चाहता हूं जो कि मौजूदा जो विधायक हैं यहाँ के, या नोएडा की बात करें या बीजेपी के जो भी विधायक हैं, नोएडा की खासकर हम बात करें तो नोएडा के विधायक तो कभी नोएडा में आते ही नहीं है, वो तो टूरिस्ट विधायक हैं। आप चले जाइए कच्ची कॉलोनियों के अंदर, जो कितना बुरा हाल हो चुका है कच्ची कॉलोनियों के अंदर, जो पानी भर चुका है। और जब कच्ची कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो है विधायक का के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, तो आज ही के मैं आपको बात बताऊं तो उनके घर तोड़े जाते हैं। वाल्मीकि समाज को धमकाया जाता है, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। किसने दी धमकी? आज ही सेक्टर 16 के अंदर जो है रेणु प्रधान जी रहती हैं, उन्होंने जब मनोज तिवारी को जूता दिखाया, वो सारे चैनलों ने दिखाया। तो आज जब पंकज सिंह जी वहां पर जाते हैं तो उससे उनके जाने से पहले पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और उनके घर में तोड़फोड़ करते हैं। ये आपका दावा है, अगर पंकज जी यहाँ होते तो मैं उनसे ये सवाल पूछ दिए देता। लेकिन धीरेन जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ। एंड माई क्वेश्चन टू यू इज, ये जो पीड़ा है लोगों की, धीरेन जी, जैसे कि अभी अभिषेक बता रहे थे, ये शर्म की बात नहीं होगी कि अगर हाई राइज बिल्डिंग गिर जाए क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है? क्या ये डेवलपमेंट का ये एक विभत्स रूप नहीं है? इट्स लाइक द अगली साइड ऑफ द डेवलपमेंट। निश्चित तौर से ये शर्म की बात है। मेरे सीनियर और मेरे पुराने साथी कृपाराम जी खड़े हुए हैं, मैं उनको नमस्कार करते हुए कहता हूँ, ये सारी समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं, नोएडा वेस्ट को रातों रात औद्योगिक क्षेत्र से लैंड यूज चेंज करके उसे आवासीय बना दिया गया। अभी सीएजी ऑडिट हुआ है नोएडा प्राधिकरण का, 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला 2005 से और 2017 का इन्हीं की सरकारों के समय का निकला है। तो इन लोगों ने जिस तरीके से नोएडा को लूटने का अड्डा बनाया, आज इनके पास मुद्दे कुछ है नहीं, ये जातियों में लोगों को भटका रहे हैं। तो कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला ग्रेटर नोएडा में सीएजी ऑडिट में सामने आया। किसानों के नाम पर इन लोगों ने जो जमीनों की लूट मचाई थी पिछले दिनों में, ये सारी जो परेशानियां बायर्स को इन्हीं की वजह से भुगतनी पड़ रही हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी, एक सवाल अभिषेक जी से जाते आते पूछना था। अभिषेक जी, डू यू फील दैट फ्लैट ओनर्स can make a political impact this time around? बिल्कुल। देखिए हम लोगों ने एक काफ़ी अभियान चला रखा था कि सवाल करो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी प्रत्याशी हो, उनके पास एजेंडा क्या। आज सभी बड़े दल के नेता आते हैं और उनके एजेंडे में होम बायर्स का इशू शामिल है, लेकिन उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि हम इसका समाधान कैसे करेंगे। एक कैंपेन आपने चलाया था, नो रजिस्ट्री नो वोट। हाँ, मैं इस पे भी आ रहा हूँ। हम लोगों ने ट्विटर स्पेस पे सभी प्रत्याशियों से सवाल किया, जवाब किसी के पास नहीं था। जैसे ये देखिए, हम सारी दोस्त मौजूदा विधायक या सांसद पे नहीं जा सकते, इन सभी पार्टी के दल के भी नेता विधानसभा में बैठते हैं। आगे की बात करनी होगी, पिछले में किसने क्या किया उसकी बात। मैं एक अपील करना चाहता हूं। जैसे मैं अभी धीरेन्द्र जी, हमारे विधायक जी जो हैं वो लाइन पे हैं, तो सुन रहे हैं आपकी। हाँ, तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, देखिए वो अपने क्षेत्र में जैसे
जैसे विकास किए, फिल्म सिटी लाए और ये लाए, तो आपके माध्यम से मैं अपील करूँ, जीत के जाएंगे तो हम लोग होम बायर्स की आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि धीरेन जी, आपसे अपील है कि ये विधानसभा में आप सवाल उठाएंगे या नहीं? शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, आप उठाएंगे? देखिए, आपने रोड मैप की बात करी, हाँ। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ। हमारे यहाँ सौरखा गांव है, कई हजार बीघा जमीन राज्य सरकार में निहित होगी लोगों की। बहन जी मुख्यमंत्री बनी, लोगों के पास शिकायत गई, 1 मिनट नहीं लगा आधे। ठीक है, मैं धीरेन जी आप बताइए, पैसे दिए, विल यू रेज दिस इशू इन द विधानसभा अगर आप दोबारा चुन के आते हैं? दैट्स एन अपील फ्रॉम द रेजिडेंट्स। संकेत जी 100% उठाऊंगा बायर्स के मुद्दे को, और मैंने ही उठाया था। रेरा का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हुआ। एक आश्वासन आपको मिला है, यू हैव गॉट एन एश्योरेंस फ्रॉम द सिटिंग एमएलए ऑफ जेवर एंड एन एमएलए कैंडिडेट from the BSP, who they are saying that they will raise this issue in the Vidhan Sabha. I am sure Pankhudi will also say the same. But thank you very much for joining us on this discussion. Now, for the ground report, we actually went to one of these very posh, high-profile, highly marketed, huge, splashy ads in the newspapers. One such society in Greater Noida, to see what exactly are the conditions in which people are living. Take a look at this report. So the sad reality of houses in Noida and Greater Noida is exactly this, that for over decades, the dream house looks something like this, lying incomplete, where its occupants are lying in wait, that one day this is going to be complete and they will shift. In fact, there are some cases where people have shifted, but they are not rightful owners, because the societies are not in livable conditions. So there are people, what will they do? Middle class families are having to stay in societies where a portion of the building is complete, but the other half, you can see, has been lying exactly like this for close to a decade. This is one such society in Greater Noida, and I have its residents. This is called Supertech Eco Village 2. आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अमित सिंह है जी। अमित जी, क्या दिक्कत है आपकी सोसाइटी में? प्रॉब्लम ये है कि सर हम लोगों ने 2010 में घर बुक करा था, फ्लैट अपना बुक करा था, पोजीशन का डेट 2013 था, लेकिन आज 2022 को आने को है। 2013 में आपको मिलना था और अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला, अभी तक घर नहीं मिला। सिंह साहब, ये दिक्कत क्या सभी लोगों की है कि एक तो रजिस्ट्री ना होना, माने मैंने घर दे दिया, मैं उसमें रहना भी शुरू कर दिया, लेकिन मैं उसका मालिकाना हक नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने उसको रजिस्टर नहीं कराया। सर, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, जैसा हमारा बताया है यहाँ सोसाइटी में और लोगों ने भी आपको बताया होगा, ये सबकी कॉमन प्रॉब्लम है कि यहाँ रजिस्ट्री नहीं हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो रजिस्ट्री न होना है। दूसरा ये है कि मेरे जैसा अगर किसी आदमी को 2-4 महीने पहले घर इन्होंने रहने को दे दिया है, तो वो भी आधी अधूरी सुविधाओं के साथ है। रजिस्ट्री तो है ही नहीं। मैं अपने फ्लैट में रह के भी ओसी नहीं है, मैं कहीं क्लेम नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई या मेरे फैमिली को कोई दुर्घटना होती है तो घर पर मैं कुछ नहीं कर सकता। ओसी मतलब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कि अब आप यहाँ पर रह सकते हैं, तो बिना ऐसे सर्टिफिकेट के लोग रह रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अपने आप में गैर कानूनी है। बेसमेंट तो बिल्कुल जैसे हालत है, जैसे बेसमेंट चल के अभी देखेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स आर, यू कैन सी दैट दिस कलेक्शन ऑफ वाटर राइट हियर इज एन इनविटेशन टू डिजीज। बीमारी का सबसे पहला लक्षण है ये, इस तरीके से लोग, और इसी माहौल में आप रहते हैं। ये जो डर है कि बिल्डिंग गिर जाएगी, ये डर क्यों है? सर देखिए, पिलर्स हैं, सरिया हैं, जंग भी लग सकती है। बेसमेंट में इतना पानी भरा हुआ है जो कि बेस मतलब पिलर्स के नीचे भी जा रहा है, और यहाँ की मिट्टी जो है वो खेती वाली मिट्टी है, थोड़ी रेतीली मिट्टी है, तो वो खसक भी सकती है। हालांकि अच्छी तरीके से बीम्स को और पिलर्स को बनाया गया है, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़्यादा जाने से जो है वो सरिया वगैरह बीम्स वगैरह पर इफेक्ट डाल सकती है। बिल्डर्स को लेकर के भी हम अथॉरिटी में बैठे हैं, सीओ साहब के साथ बैठे हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बिल्डर का जो पैसा बाकी है वो बिल्डर देने को तैयार ही नहीं है, तो रजिस्ट्री कैसे होगी? साथ में गवर्नमेंट कहती है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, आप सबलीज करा लीजिए। सबलीज करा करके हम अपने पैसे को जो हमारे बैंक में है वो हम गवर्नमेंट को दे देंगे, लेकिन उससे हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। मतलब एक लड़ाई है जो कि बिल्डर और सरकार के बीच में है, लेकिन उसमें पिस आप लोग रहे हैं जो कि रेजिडेंट्स हैं यहाँ। हैव यू टेकन दिस अप पॉलिटिकली? मतलब आपने रिप्रेजेंटेटिव से बात की?
हम लोगों ने सबसे बात कर लिया। और ये जो चुनावी वसंत जो आपके आ रहे हैं, इसमें तो मतलब सारी मीडिया वाले और हमारे सारे नेता लोग जो हैं सभी लोग आ गए हैं, मतलब कि चलो अभी जो है इन लोगों को जितना वोट गिनना है वही गिना लो, भुना लो, उसके बाद से तो दोबारा तो मौका मिलने लगता है। इस जो है रजिस्ट्री के नाम पर जो है लगे हुए हैं, हम लोगों से वोट लेना है, और हमारी जो है मतलब ऐसा लगता है कि इस जो है 3 महीने में वो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। One interesting point that was mentioned was about the basement. तो अगर आप मुझे वो दिखा दें, someone was talking about the basement. आप बेसमेंट के बारे में बात करा रहे थे, आइए वो देखते हैं। हाँ जी, कहाँ पर है? इधर से निकलेंगे, ये नीचे से स्टेयर है जाने की। तो ये टावर्स हैं जिसमें लोग रहते हैं, लेकिन उनके बेसमेंट की हालत ये है। ये सब इस टावर में अभी नहीं रहना किया है, इसके बराबर वाले में रह रहे हैं। हाँ, बट दिस इज अ कॉमन बेसमेंट, सब लोगों का एक ही बेसमेंट सबका एक है। ओके, और यहाँ से सो थोड़ा सा जस्ट बी केयरफुल बिकॉज रास्ता जो होगा दैट्स देख के थोड़ा संभल के चलिएगा। बैड कंडीशन द बेसमेंट इज इन, एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन which is there in almost all societies. Oh God, this is terrible. So that's by the way. अच्छा, ये वाले एरिया में लोग रह रहे हैं उधर, हाँ? इसके सामने वाला टावर है ये। So as you can see, and I can't tell you the terrible stench. It's practically impossible to stand here in the stench. These are towers. I don't know if the camera can show you or not. This is a basement where vehicles are supposed to be parked. इसके ऊपर लोग रह रहे हैं, but look at the condition of this basement. Completely flooded with sewage water. This is not normal water, also sewage water. Rathi is going to show you that side. So all the garbage and sewage water is getting collected and people are staying on top of it. ऊपर से गार्बेज नीचे डाला हुआ है। Terrible. So that's the unfortunate reality of these very ambitious high-rise projects of Noida and Greater Noida. In fact, it is so deadly that you can see these open wires also all across the basement. So this is a disaster waiting to happen. So in Noida and Greater Noida, there is a story of 2 cities. 2 different types of cities with 2 different characteristics. On one hand, you've got these tall buildings on each side, some under construction. They have their own problem, as we got you the report. And within meters away from this characteristic of Noida and Greater Noida is this alternate reality. The rural side of this region. This has its own unique characteristics, its own issues, which are very, very different from what the city dwellers have to say or feel. What are the issues in the villages of Noida and Greater Noida? Right now we are in this village called Roza Yaqubpur. It's got a mixed population, and you will realize that within meters, issues change completely in one city. Let's find out. फ्लैट वाले परेशान हैं, इनको पैसा नहीं दे रहे। अजय नागर जी हैं, आप प्रधान हैं रोज़ा याकूबपुर गांव के। मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए शहर के मुद्दे, शहरी मुद्दे, बिल्डिंग में रहने वाले लोग उनके मुद्दे, बिल्डिंग से परेशान, रजिस्ट्री से परेशान, गांव के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में मेन मुद्दे गांव के जो हैं आबादी को लेके हैं। लोगों की आबादी छोड़ दी गई थी, बोर्ड से पास हो गई, उन लोगों की आज तक बैकलीज नहीं हुई है, और लोगों का कोर्ट से 10% का प्लॉट का मालिकाना हक था, जो कि आज तक अथॉरिटी ने किसानों को नहीं दी है। इसके प्रति किसानों में बहुत बड़ा रोष है। ये अगर आप विस्तार से समझा सकें, जो आप आबादी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? प्राधिकरण ने किसानों के जो पुराने पुश्तैनी मकान थे वो अधिग्रहण कर लिए थे, और अधिग्रहण के नाम पे जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। और बहन जी की सरकार में एक नियमावली बनी कि प्रत्येक किसान को, जो आबादी के लाल डोरे के अंदर आ रहा है, प्रत्येक किसानों को 3000 वर्ग मीटर जमीन आबादी के रूप में दे दी जाए। परंतु प्राधिकरण अपनी मनमानी पे उतारू है, ना ही कोर्ट की मान रहा है और ना ही जो कमेटी बनी थी
उसकी बातें मानता है और तानाशाही कार्रवाई है प्राधिकरण का जो है किसानों के प्रति। तो ये किसान भी नाराज हैं प्राधिकरण से, वो जो फ्लैट बायर हैं वो भी नाराज हैं। ये प्राधिकरण ही दिक्कत है या कुछ और है? समस्या शासन चाहे सरकार चाहे तो प्राधिकरण को नकेल डाल के किसानों की समस्या हल करा सकता है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि सरकार भी नहीं चाहती कि किसानों के पर ये तो कोई आज का मुद्दा नहीं है नागर जी। ये तो मैं सोच रहा हूँ 2010 में जब यहाँ पर जमीन अधिग्रहण हुआ था, उसके बाद मायावती की सरकार थी, फिर अखिलेश की सरकार आई, फिर योगी की सरकार आई। तो ये एक सरकार ने नहीं, कई सरकारों का मुद्दा हो गया। तो नहीं, सभी सरकारें इसी तरह जो है किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। ना बसपा ने किया, ना सपा ने किया, ना ही भाजपा सरकार कर रही किसानों के प्रति। तीनों सरकार ही लगता है कि किसानों से उन्हें कोई प्रीत नहीं है, ना बाहर से है, ना किसानों से है, ना मजदूरों से है, ना विकास के नाम पे बस चिल्लाते हैं, बाकी पटल पे कुछ नहीं करते। अभी क्योंकि पिछले 5 साल का लेखा जोखा लिया जाएगा, तो आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दे बनेंगे किसानों के लिए या गाँव में जो लोग रहते हैं उनके लिए? नहीं, किसानों के लिए तो विशेषकर चुनावी मुद्दा ये बिल्कुल है और बना भी रहेगा। जब तक किसानों की समस्या हल नहीं होंगी तो ये चुनावी मुद्दा किसानों का बना रहेगा। So we got you these reports from Noida, Greater Noida, Jewar, and the thing is that when you conceptualize or think of a smart city, its sewage system also has to be smart. The people living in it, their living conditions also have to be smart, and that's when you can actually think of having created a smart city. Has that been done with Noida, or is this a classic case of a glitzy, shiny Noida in newspapers and ads? But the reality, very different. In other words, a tale of two Noidas. Good night and goodbye.